द पर्पस इज दिस। मेरा जो आज का मोटिव है, दस मोटिव इज कि एक जो मिथ है कि मुझे बिग फोर में जाना है या मुझे बिग फोर में नहीं जाना है, टॉप 20 फर्म से करना चाहिए आर्टिकलशिप या नहीं करना चाहिए, एंड हाउ योर आर्टिकलशिप विल डिसाइड योर फ्यूचर करियर। So that this is the entire thing, and this I know that we will not be able to complete the entire thing into a 45 minute, but yes, definitely we'll try to complete. And my motive is just to tell you the truth. Being a experienced person, of having experience of more than 6.5 years with the Big Four, and so before let me introduce myself. So as you can see on the Zoom that yes, my name is Gaurav Mishra, and by profession I'm a chartered accountant. And if I talk about my city of belonging, so I belongs from a very small city called as a Prayagraj. Earlier it was Allahabad in Uttar Pradesh. And yes, Prayagraj is no doubt a holy city where Ganga, Yamuna, and Saraswati, all three rivers come and meet. ये एक धारणा है यहाँ की. And about my education, so I have completed my entire education from Allahabad University, and my schooling from State Board of UP. And in terms of articleship, if I tell about, so articleship, I have completed around 6 or 7 months of articleship from Allahabad itself, because I was searching for the articleship with the good firm, but I was not able to make it. But yes, after some period of time of, you can say that around 6 or 7 months, I got an opportunity to shift to Mumbai. And again in Mumbai, I joined one of the medium-sized CA firm. But yes, that was not a very small medium. It's a upper medium size firm, which is having a partner of around 14 and 15 partners. And all partners are based off either of Maharashtra or South India. And so apart from this, I have completed my entire 2 year of articleship within Mumbai. And my third year of articleship, if I talk about, so I did industrial training with Anand Rathi Share and Stock Brokers, which is again the founder, Mr. Anand Rathi is chartered accountant by profession. And yes, over there I learned a lot from the perspective of the share market. And apart from this, then again, if I talk about my entire CA final exam, so I again came back to Allahabad, then I attempted CA final exam, and then I made it qualified in second attempt. So first group in first attempt and second group in second attempt. So yes, हो सकता है कि मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीसीसी क्वालिफाई नहीं करा होगा या ग्रुप वन दिया होगा, ग्रुप टू सेकंड अटेम्प्ट में दिया होगा. एंड यस, देयर विल बी few people who made clear their exam in the first attempt itself. Some of might be ranker, or you can say that nearby a very good marks. So this is all about my journey. And if I talk about after articleship and after clearing my CA exam, and so the thing is, the journey is quite interesting. Again, when I completed my CA, I thought कि नहीं यार, अब तो मेरे को जॉब मिल जाएगी, सीए तो बन गया ही हूँ मेरे को. बिकॉज आई वॉज हैविंग एग्जाम्शन इन 3 सब्जेक्ट्स. ऑडिट वॉज माई फेवरेट फ्रॉम इंटरमीडिएट टू फाइनल. सो इंटरमीडिएट में भी मेरे ऑडिट में 75+ थे, एंड फाइनल्स में भी मेरे 75+ थे. एंड अगेन उस टाइम पे सो कॉल्ड इसका एक सब्जेक्ट हुआ करता था, उसमें मेरे 80+ मार्क्स थे. सो दिस वॉज, यू कैन से दैट ये एक जर्नी थी जिसके थ्रू मैंने सोचा था कि मुझे बिग फोर में एक ऑप्शन मिल सकता है. बट जैसे ही मेरे रिजल्ट आए, देन आई वाज स्टार्टेड सर्चिंग, बट नहीं हो पाया वो कैसे भी, ड्यू टू द रीजन आई वाज नॉट हैविंग गुड कनेक्ट्स, आई वाज नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस इनटू द ऑडिट. Yes, in the articleship I was having more experience into the project finance as well as the bank audit. So this is one thing. And but yes, for you can say that August 2017 16 to December 16, I worked with one of the medium sized CFM in Mumbai. And then from Jan 2017 till now I'm working with Big Four. And the journey of the Big Four is like this. I was not having any connects. It is not like that it is my achievement, but yes, I can say that as of now, you people will be having a lot of access with multiple peoples over LinkedIn. आज से 7 साल पहले मुझे भी नहीं पता था इतना कि यार लिंक्डइन का इतना कोई इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज मैंने कभी इतना ध्यान दिया नहीं था. एंड मेरे ग्रुप सर्कल्स में भी लोग जो थे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था. बट आज की डेट में, एज यू कैन सी, दैट दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in terms of the networking and all. So starting 4.5 years, I worked with KPMG.
and into the internal audit. And after that, I joined PwC. And as of now, I'm working with manager into risk assurance department. So this is all about me. And yes, अभी मैं explain करूंगा कि मुझे जर्नी कैसे स्टार्ट हुई बिग फोर में नहीं, दैट्स अ टोटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम एंड वो हम कभी और भी डिस्कस कर सकते हैं. And before that, before discussing the entire things or expectations or agenda, so can I request from everyone who will start first for introduction? So it will be your name, your city of belonging, and your educational qualification. Like CA में आपने IPCC ग्रुप 1 दिया है या दोनों ग्रुप क्वालिफाई कर लिया? And what's your expectation for the articleship? So who will start first? May I, sir? Yeah, hey, hi Rishi, Rashi. So, good evening, everyone. My name is Rashi. As my family roots belong from Uttar Pradesh, but I currently live in Hisar and Haryana. I have recently appeared for November 23 intermediate examination, both groups, and I have cleared my CA foundation in December 2022 with 338 marks out of 400. And I have completed my OC orientation classes as prescribed by ICI. And now I'm expecting the articleships in Big Four for big exposure like MNCs and listed companies. Thank you. Okay, thank you. Who will next? May I? Yeah, please. So this is Diksha Motwani belonging to Ulhasnagar. Like typically I can say it's in Mumbai itself. Yes, I know. And I just given my inter attempt in November 23 and cleared my foundation in December 22 with 245 marks and exemption in two of the subjects and given both the groups in November 23 and done with the IT and currently continuing with the OC. Okay, thank you. So what's your expectation in terms of articleship? Is it the So big for four or articleship, basically I'm aiming for Big Six okay? and So you are typically in very clear domain of about stat audit or IDT. okay, thank you. Who will next? Sir, may I? Yeah, please. Hello, everyone. I am Ishika Agrawal from Kasganj, Uttar Pradesh, and I have Ishika, can just you given please my. switch? Ishika, can you please, if you don't mind, can you please switch on your camera? Sorry, sir. Can you please switch on your camera? Sir, actually, here it's not the condition to. Okay, sure, no issue. Please continue. Okay, sir. I have just given my both groups of intermediate examination in November 23, and I'm expecting my articleship in Big Four or Big Six could be okay as well. And domain I would prefer would be stat audit or finance, except the taxation I would prefer. Okay, thank you. Who will next? Sir, may I? Yeah, Shwetanshu. Then Atmash, after Shwetanshu, you can. Yeah, Shwetanshu, please. Good evening, sir. My name is Swetanshu Singh, and I am 22 years old. I have means I have passed my CA foundation in July 21, and in this attempt, I have appeared for both groups. I have completed my ITOC training, and I prefer Big Four or Big Six. And one more thing I want to share, sir, that I uh, I sent my resume for referral, and it has got accepted in EY Pune. Thank you, sir. Oh, that's good. It's a good thing. Yeah, Atmash. And sir, one more point, sir. Yeah, please. Sir, the domain was of assurance, sir. Assurance. Articleship Okay. domain. Okay. So you have completed your interview or how? Means I sent my resume to senior manager, and then he referred my resume Okay. further. Done. Thanks.
And I filled that form from eBay. Candidature form, correct. Yes, sir. Yeah, Atmas, please. Hi everybody, myself Atmaj. I was born in Maharashtra, currently living in Gurgaon, and I cleared foundation in December 22 attempt and have given both the groups in this attempt. And for articleship, I prefer Big Four or Big Six firms in stat audit domain. Okay, thank you. Yeah, anyone else? हाँ बोलो Tripti. So I think Tripti raised the hand first. Yeah, please. Hello everyone, my name is Tripti and I'm from Rohtak, Haryana. I have already passed my CA Inter Group 1 in November 22 and awaiting for my Inter Group 2 results. My expectations is to get into Big Four basically and specifically in stat audit domain. Okay, Thank you. thank you. Yeah, hi Shita. Hello everyone, I'm Ishita and I have appeared for both groups in November 2023 intermediate and I belong to Rohtak, Haryana as all for articleship. I'm thinking for a Big Four firm or and in audit domain or litigation. Thank Okay, you. Yeah. thank you. So Tripti and Ishita, you both are friends? Yes, sir. Okay. So anyone else? So I think some people don't want to introduce themselves. So that's not an issue. So what is your expectation from this particular discussion? I just want to hear from, you can put in the chat box also. So till that time I can continue. So what is your expectation that yes, you want this type of knowledge from today's session, or you can say that discussion. And let me tell you about myself that what I'm going to discuss today with you all. So can you please see my screen? Yeah, Ishika, please. Yeah, Ishika, you can speak, please. Sir, am I audible? Yeah, very well. So, sir, I was saying that one thing I would like to ask is about a summary of all the various domains which we have as an option for articleship. Okay, definitely sure. Yes, sir, that's it. Okay, some Disha. Okay. Okay. So no issue. Let me just share my screen first of all. See, the basic purpose, मेरा जो आज का डिस्कशन करने का जो पर्पस है वो यही एक चीज है कि अगर हमने ये सोच के रखा हुआ है कि मुझको बिग फोर में जाना है, अगर बिग फोर सबको नहीं मिला, बिकॉज सी एक चीज तो हमको पता है कि सारे बिग फोर में देयर विल बी अ लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज, बट हमारे जो सीए के स्टूडेंट्स होंगे वो वैकेंसीज से कई मल्टीपल्स ज्यादा होंगे। एक तो ये है, दिस इज द ट्रुथ। सेकेंड पार्ट इज, अगर हमको बिग फोर में नहीं मिला या हमको बिग सिक्स में मिल गया, और अगर हमें बिग सिक्स में नहीं मिला तो उसके बाद क्या मैं टॉप 10 में कोई भी फॉर्म चूज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? नहीं। यस और नो। एंड उसके बाद का करियर क्या होगा कि अगर मान लो मुझे बिग फोर में नहीं मिला या मुझे किसी पर मिड साइज फर्म में मिला या किसी टॉप 10 या टॉप 20 फर्म, टॉप 20 ऑफ द इंडिया लेवल उसमें मिला, तो क्या सीए बनने के बाद में मेरी जो अपॉर्चुनिटी है जॉब की विद द बिग फोर, वेदर दैट विल कंटिन्यू और नॉट? ये सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। और आज की डेट में व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग कि नहीं ठीक है,
So like some people have said कि नहीं मुझे मेरा जो टारगेट है वो बिग 6 का है. Some people said कि नहीं मेरा जो टारगेट है वो बिग 4 का है. अपन एकदम रियलिटी में बात करेंगे, ठीक है. बिग 4 सबने सुना होगा, सबको लग रहा होगा कि यार ठीक है मेरा फ्रेंड या कलीग जो है बिग 4 से आर्टिकलशिप कर रहा है. और अगर आप बिग 4 से आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हो, इज इट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन द फ्यूचर? व्हाट इज द रियलिटी? ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपने बिग 4 से आर्टिकलशिप नहीं करी तो आपको जॉब अच्छी नहीं मिलेगी. ये क्वेश्चन आना चाहिए. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड कम इनटू योर माइंड. द सेकंड पार्ट इज कि चलो ठीक है यार मेरे को बिग 4 में मिल गया. अब किसी ने बोला कि नहीं मुझे बिग 4 में जाना है तो केवल और केवल मुझे स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन में जाना है. सम पीपल माइट हैव थॉट प्रोसेस कि नहीं मुझे जाना है तो मुझे डील्स या वैल्यूएशन या मर्जर एक्विजिशन में जाना है. बिकॉज ये नाम इतने बड़े होते हैं ना कि हमको तो इतना फैंसी लगता है कि यार मैं डील्स में काम कर रहा हूँ, मैं मर्जर एक्विजिशन में काम कर रहा हूँ. बट आप ये सोचो जिनकी आर्टिकलशिप अब स्टार्ट होगी, पहले तो यही आर्टिकलशिप हुआ करती थी 3 years की, बट अभी जो ये आर्टिकलशिप है दैट विल कंटिन्यू फॉर मैक्स टू मैक्स 2 years अंडर द न्यू स्कीम. एंड 2 साल के बाद ही आप आर्टिकलशिप कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको 6 महीने का एक स्टडी लीव होगा, उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो. एम आई करेक्ट? ओके. अब आप ये सोचो कि अगर आपको 2 साल की आर्टिकलशिप मिलती है बिग 4 में या बिग 6 में या टॉप 10 ऑफ द इंडिया फर्म में, इसमें से अगर आपको बिग 4 या बिग 6 नहीं मिला तो हमें क्या करना चाहिए? और अगर बिग 4 मिल गया और उसमें भी आपको लगता है कि नहीं यार मेरा ये डोमेन नहीं चाहिए था, मुझे तो कुछ और ही डोमेन चाहिए था, उस केस में क्या करोगे आप? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में. सी नाउ द केसेस, अगर मैं अपना बताऊं, मेरा कोई भी बिग 4 के आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस नहीं था, बट स्टिल आई एबल टू मैनेज इट विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी नेटवर्किंग. बट ये सब चीजें मैनेज हो गई. आज की डेट में आई कैन से कि अगर आपकी आर्टिकलशिप बिग 4 से नहीं है, या अज्यूम करो दिल्ली के किसी टॉप 5 या टॉप 10 फर्म से हुई है, तो बिग 4 में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, और किस डोमेन में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है. So my question is very simple, and you should put the answer into the chat box. And please be interactive. The question is, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा वैकेंसीज किस डोमेन में होती है? आप वो चाहे बिग 4 ले लो या बिग 6 ले लो या बिग 10 ले लो. Is it into the stat audit? Is it into the internal audit? Is it into merger acquisition? Is it into taxation or some other field? I'll tell you in detail that what all other domain is available. बट मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन से कौन से डोमेन में सबसे ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल होती है? ओके. Some people are saying that yes, stat. Some people are saying that yes, taxation and stat. Some people are saying internal. Okay. So I can see that yes, maximum number of people what they have answered that yes, stat. Some people have answered internal and some people have answered taxation and stat both. This will be again the question mark as of now till the time we will not be able to conclude the entire discussion. My second question is, अगर आपने बिग 4 को ज्वाइन कर लिया, क्या आपने सारी चीजें अचीव कर ली फ्रॉम योर आर्टिकलशिप पर्सपेक्टिव और योर ग्रोथ पर्सपेक्टिव? कैन यू प्लीज पिंग ऑन द चैट बॉक्स? सो whatever question I'll ask, please put the entire answers into the chat box. मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि अगर आपने बिग 4 ज्वाइन करा, बिग 4 ज्वाइन करने के बाद में आपको क्या लगता है कि आपको सारी चीजें मिल गई हैं या नहीं मिली है? यस और नो? ओके, इशिता, तृप्ति. ओके. Okay. Some people said yes, very few people, and a lot of people said no. Now my third question. Yeah, big 4 or what you can see that. What is the biggest learning from your hearings?
जो भी आपने अपने कनेक्शन से सुना, अपने सीनियर से सुना, अपने कलीग से सुना, जो बिग 4 या बिग 6 में आर्टिकलशिप कर रहे हैं, what is the biggest learning or what are the 2 or 3 learnings you can learn into the big 4 what you cannot learn in other firm? मेरे को एक या दो कोई एक आंसर दे दो कि अगर आप बिग 4 में आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हो तो एक या दो ऐसी चीजें बता दो मेरे को जहां पे आपको लगता है कि हाँ ये चीज मेरे को बिग 4 में मिलेगी, बिग 6 में नहीं मिलेगी। वर्क लाइफ बैलेंस आपने बोला, सी मुझे आंसर चाहिए दिशा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट मींस दैट वर्क लाइफ बैलेंस आपको बिग 4 में नहीं होगा, वर्क प्रेशर ज्यादा होगा, करेक्ट? मीटिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स, ओके ओके। Someone said that yes, presentation, discipline, handling clients. Someone said handling work pressure. Diksha said specialization and brand value. Samruddhi said specialization. Okay. Specialization. Tripti, specialization, too much exposure along with the work pressure. Okay. So I think more or less दो चीजें सबको कवर है। एक तो ये कि आपको वर्क प्रेशर कैसे डील करना होगा आपको पता चलेगा, दूसरा है आपका स्पेशलाइजेशन एंड ब्रांड वैल्यू। Now the second part, specialization, I'll keep aside. Why I will not say that कि आपको जब आर्टिकलशिप में होते हो बिग 4 में, तो ये डिपेंड करता है आपकी टीम के ऊपर कि आपको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। एक चीज सिंपल सा फंडा है, मैं बताता हूं आपको। जब भी आप बिग 4 में जाते हो, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू कंसीडर कि हाँ अगर आप बिग 4 में जा रहे हो आपको क्या क्या चीजें ऑलरेडी सबसे पहले पता होनी चाहिए। If I talk about the big 4, PwC, EY, KPMG and Deloitte, these are the top big 4. रैंकिंग्स इनकी चेंज होती रहती, किसी की प्रैक्टिस। अगर मैं बात करूं कि बिग 4 में क्या क्या प्रैक्टिसेस हो सकती है, see even within the start audit there will be a lot number of practices, सब practices अगर मैं बात करूं, इंटरनल में भी कई ढेर सारी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं या होती भी है, जो कि अदर फर्म के साथ में आपको उस चीज की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अब मैं बात करता हूं कि सपोज अगर आप बिग 4 ज्वाइन करते हो, पीडब्ल्यूसी ज्वाइन कर लो या केपीएमजी ज्वाइन कर लो या डेलॉइट कर लो या ईवाई कर लो, चारों में से कोई भी बिग 4 ज्वाइन कर लो, one thing is very clear, the brand value which you will carry with yourself which other people will not be able to carry, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बिग 4 के साथ काम करने का। बट अगेन देयर इज अ डिस्क्लेमर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिग 4 के बराबर के ब्रांड मार्केट में नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स हु आर डूइंग वेरी वेल इन सम ऑफ द प्रैक्टिसेस as compared to big 4. If someone heard the name Lakshmi Kumaran and Sridharan, there's a firm name called Lakshmi Kumaran and Sridharan, they are doing pretty well as compared to big 4 into the area of taxation and litigation. Lakshmi Kumaran and Sridharan, they are competing with the big 4. अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो सपोज करो किसी का आर्टिकल से बिग 4 से नहीं हुआ और उसको डोमेन चाहिए कि मेरे को टैक्सेशन या लिटिगेशन में जाना है, तो उस केस में क्या होगा, अगर उसको बिग 4 नहीं मिला, लक्ष्मी कुमारन श्रीधरन जैसी फर्म में मिल गया काम उसको, इट मींस दैट जब भी कल को वो सीए बनने के बाद में बिग 4 में ज्वाइन करना चाहेगा, ऑलवेज ही और शी विल गेट एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। तो ये चीज तो सिंपल सा फंडा है। And now I talk about the big 6. So in terms of the big 6, if I talk about, you might have heard the name of Protiviti Consulting. As of now, Protiviti is leading into the market into the area of internal audit. Next one is BDO and next one is Grant Thornton. These three
firms are competing with each other in some of the areas. बिग फोर में जितनी प्रैक्टिसेस हैं, हो सकता है वीडियो, जीटी और प्रोटीविटी में वो सारी प्रैक्टिसेस नहीं हो सकती है. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, लाइक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और यू कैन से दैट फॉरेंसिक कंसल्टिंग. आज की डेट में केवल और केवल बिग फोर ऑडिटिंग फर्म के पास में है, बाकी के वीडियो, जीटी और प्रोटीविटी के पास में नहीं है. बट यस, अभी आपको मार्केट में पिछले 1-1.5 साल 2 साल में नाम सुना होगा कि वीडियो को फॉरेंसिक्स करने को मिला है. जैसे अडानी के केस में उसको फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन करने को मिला, डीएचएफएल के केस में मिला. दीज आर द न्यू प्रैक्टिसेस व्हिच दीज फर्म्स हैव स्टार्टेड. बट अगर मैं बिग फोर की बात करूं तो बिग फोर में ये प्रैक्टिसेस कई डिकेड से चल रही है, 1 डिकेड 2 डिकेड से ये प्रैक्टिसेस चल रही हैं. सो अगर मैं बात करूं बिग फोर की, तो बिग फोर में एक चीज तो याद रखो कि इट इज लाइक अ अम्ब्रेला. अंडर वन अम्ब्रेला देयर विल बी अ मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांचेस. अगर मैं इसको वापस से किसी और चीज में कन्वर्ट करूं, लेट्स टेक वन एग्जांपल. जैसे दिल्ली गुड़गांव, जैसे गुड़गांव में एक मॉल है एम्बियंस मॉल. पीपल नो दैट पर्टिकुलर मॉल बाय द नेम ऑफ एम्बियंस मॉल. बट एम्बियंस मॉल में तो अगर आप शॉप्स देखोगे या शोरूम देखोगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के शोरूम होंगे, फूड कोर्ट्स होंगे. बट अल्टीमेटली पीपल नोस दैट कि हम एम्बियंस मॉल है वहां पे. बिग फोर इज लाइक दैट ओनली. there's a umbrella, there's a brand. उस ब्रांड के नीचे कई ढेर सारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं. उनके अंदर एडवाइजरी की भी सर्विसेज है, कंसल्टिंग की भी सर्विसेज है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट की भी सर्विसेज है और अश्योरेंस की सर्विसेज भी है. अब बात आती है, ये 4 जो ब्रांचेस हैं बिग फोर में, सबने एडवाइजरी का नाम सुना होगा, सबने अश्योरेंस का नाम सुना होगा. मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज टोटली डिफरेंट. इट इज, यू कैन से दैट practice which works for the benefit of the management. बट अगर मैं एडवाइजरी और एश्योरेंस की बात करूंगा तो दे आर वर्किंग लाइक एन ऑडिटर और द कंट्रोल ओनर्स और कंट्रोल इंस्पेक्टर्स. अगर मैं एडवाइजरी की बात करूं या एश्योरेंस, लेट्स टेक एग्जांपल एश्योरेंस की बात करूं, उसमें आपके पास में आएंगे इंटरनल ऑडिट, स्टार्ट ऑडिट. दीज टू आर द मेजर एरियाज. एंड अगेन स्टार्ट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में भी डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. स्टार्ट ऑडिट एक डिवीजन है, उस डिवीजन में जो ऑडिट हो रहा होगा ना, उसमें भी कई प्रैक्टिसेस होंगी. एक प्रैक्टिस होगी जो केवल और केवल स्टैट्यूटरी ऑडिट पे फोकस करेगी. दूसरी प्रैक्टिस जो होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग एडवाइजरी सर्विसेज. इन सम ऑफ द बिग फोर it will be called as a capital market advisory services or CFO services. So this is one thing. अगर मैं बात करूं तीसरा, स्टार्ट ऑडिट में और क्या क्या चीज कवर होगी. एक होगी प्रैक्टिस जो बैकएंड से पूरा हैंडल करती है ग्लोबल क्लाइंट से काम. बट अगेन इफ आई टॉक अबाउट द स्टार्ट ऑडिट, जी अगर आप अदर देन बिग फोर में जाते हो, या मान लो मैं कहता हूं कि आपकी अपनी सिटीज में, सपोज जो हिसार, रोहतक या कहीं से भी बिलोंग करो, वहां पे आपके पास जो सीए फर्म होगी, हो सकता है कि आपके पार्टनर का कनेक्ट इतना अच्छा होगा कि उसके पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की भी स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए काम होगा, उसके पास नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी होगा. इज इट राइट? नाउ द थिंग इज, बिग फोर में यही चीजें डिफरेंट हो जाती है. बिग फोर में क्या होता है, वो बोलता है कि नहीं, मैंने एक अम्ब्रेला बना रखा है, उस अम्ब्रेला के अंदर अगर मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस को डिफाइन करके रखा हुआ है, उसका एक पर्पस होता है कि हमें क्लाइंट को वैल्यू एडिशन काम देना है, क्लाइंट को मुझे एक क्वालिटी ऑफ वर्क देना है. हाउ दीज थिंग्स विल डिफर.
अब किसी के मन में क्वेश्चन ये भी हो सकता है सर कि इंडेस 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो मतलब वो अगर बिग 4 का बंदा है या बिग 4 ऑडिट करे तो भी वही फॉलो करेगी, और बिग 6 या टॉप 10 होगी तो भी वही फॉलो करोगी, होता है। बट इफ यू सी द क्वालिटी ऑफ वर्किंग पेपर व्हाट दीज पीपल आर मेंटेनिंग, the quality of walkthrough of the entire process, quality of the entire execution, what Big Four is doing, that is one of the lack into the mid-size CA firm. But it is not applicable to all the mid-size CA firm. So अगर मैं बात करूं कि एक बिग 4 है, उन्होंने एक स्टैट्यूटरी ऑडिट का डिवीजन बना रखा है, उस स्टैट ऑडिट में उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपको CFO एडवाइजरी सर्विसेज देना है तो आपको इस विंग में जाना पड़ेगा, अगर आपको अकाउंटिंग एडवाइजरी सर्विसेज देना जिसका काम है अकाउंटिंग मैनुअल बनाना, उसके पूरे SOPs बनाना, तो आपको इस विंग में जाना पड़ेगा, अगर आपको कोर स्टैट ऑडिट में जाना तो आपको इस विंग में जाना पड़ेगा। सो नाउ वी हैव 3 विंग्स। अब अज्यूम करते हैं कि सपोज श्वेतांशु एंड इशिता दोनों ने EY ज्वाइन करा। श्वेतांशु क्या करता है स्टैट ऑडिट में, इंश्योरेंस या यू कैन से दैट जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के क्लाइंट है ना, उनके लिए काम करता है, एंड उनके जो मेन क्लाइंट्स है वो सारे आपके इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये सारी इंडस्ट्री हो गई। इशिता जिस टीम में काम करती वाई में, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स वाले क्लाइंट के काम है। अज्यूम करो JSW स्टील, श्वेतांशु काम कर रहा है LIC के लिए। देयर विल बी सम ऑफ द स्टैंडर्ड विच विल बी कॉमनली एप्लीकेबल टू बोथ द क्लाइंट, JSW और LIC दोनों के लिए। बट आप मेरे को बताओ कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने जितना भी पढ़ा, क्या इंश्योरेंस सेक्टर के लिए और JSW के लिए, LIC एंड JSW के लिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी सेम होगी या डिफरेंट डिफरेंट होगी? समृद्धि ने बोला कि सेम होगी। ओके, गलत। द थिंग इज LIC अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? उसको जब प्रीमियम मिलेगा तो उस पर रिकॉग्नाइज करेगा, या जब उसका प्रीमियम कस्टमर के अकाउंट से ड्यू हो जाएगा तब रिकॉग्नाइज करेगा? अगर मैं JSW की बात करूं तो उसका तो सिंपल सा फंडा है। उसने बोला कि मैं जब स्टील, JSW स्टील बनाता है, मैं जब कस्टमर के गोडाउन पे माल पहुंचा दूंगा, सपोज करो उसके परचेज ऑर्डर में या जो कस्टमर ने नेगोशिएशन किया, उसने बोला कि मैं आपको पैसा तब दूंगा या मैं सेल्स तब मानूंगा, परचेज तब मानूंगा जब आप मेरी फैक्ट्री पे माल पहुंचा दोगे, ऐसा बोला JSW के कस्टमर ने। तो आप मेरे को बोलो कि क्या तुरंत बिलिंग करने पे कस्टमर के गोडाउन पे माल नहीं पहुंचा है, JSW के कस्टमर के यहां माल नहीं पहुंचा है, बट उसकी बिलिंग हो गई है, तो क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा JSW? आंसर फ्रॉम माय साइड कि JSW रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। AS9 आपने पढ़ा होगा अगर आपको इंडेस नहीं पता है। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है, उसने क्या बोला, जब आप रिस्क एंड रिवॉर्ड सामने वाली पार्टी को ट्रांसफर कर दोगे तो उस केस में आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। These type of analysis interpretation Big Four people will do. बट क्या आर्टिकल्स को भी इतनी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है? I'll say the answer is no, subject to certain remarks. Again, मैं आपको बताऊं, like from my assessment, मैंने अभी जब सबका इंट्रोडक्शन लेने की स्टार्ट करा, सो कोई भी आगे नहीं आ रहा था, सबसे पहले एक ने स्टार्ट करा इंट्रोडक्शन। अब आप सोचो आपकी टीम में अगर 4 आर्टिकल होंगे तो हो सकता है चारों को एक जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। 4 में से 3 ऐसे बंदे होंगे जो थोड़े से इंट्रोवर्ट होंगे, जिनको काम से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, उनको लगता है कि जीके बिग फोर ज्वाइन कर लिया तो हो गया, जो लीड लेना नहीं चाहते। तो जो बंदा, जो आर्टिकल आपका फ्रेंड होगा, जिसको सबसे ज्यादा यू कैन से दैट, जिसको काम करने का एक वो होगा,
जज्बा होगा, जिसको लगता है कि नहीं मुझे सीखना है, उसका जो मैनेजर होगा ना उसको सबसे ज्यादा काम देगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टीम टू टीम कि आपको कितना बड़ा एक्सपोजर मिलता है। अदरवाइज एट द एंड ऑफ आर्टिकलशिप फॉर पीरियड ऑफ 2 years आपके साथ में एक ही चीज ऐड होगी, ब्रांड वैल्यू की आपने आर्टिकलशिप इससे करी है। This is one of the thing which is very important. You should keep into mind while selecting कि आपको बिग फोर में जाना है या नहीं जाना है। और बिग फोर में जाना है तो आपको सर्टेन क्राइटेरिया तो लेके चलने पड़ेंगे यार। नाउ आई विल टेल यू, बिग फोर में जो लर्निंग होती है ना वो स्पेसिफिक हो जाती है। अगर किसी ने स्टार्ट ऑडिट में करा है तो मैंने आपको जो बोला, जो 3 विंग है ना, जिस भी आर्टिकल को जिस भी विंग में अपॉर्चुनिटी मिली केवल वो उतना ही सीख पाएगा। बट अगर वो उतना सीखेगा ना तो वो अच्छे से सीख जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि क्या आपको इतने बड़े बड़े टास्क मिलेंगे। मैं बोलूंगा नहीं, बिकॉज 6 महीने तो आपको लगते हैं यार, अभी तो आप कॉलेज से पास आउट हुए होते हो, कॉलेज का हैंगओवर उतरे ही 2-3 महीने तो कॉलेज का हैंगओवर उतरने में निकल जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने इवन जब एकदम स्मॉल साइज सीए फर्म से करा था तो मेरा बीकॉम हो गया था, तो मेरे को लगा ठीक है मैं तो आर्टिकलशिप ऐसे ही कर जाऊंगा 3 साल। बट जब आप देखोगे ना, जब आप उस कल्चर में आओगे तो आपको वो पता चलेगा। तो 3 से 4 महीने आपको एक पूरे फर्म का कल्चर समझने में लग जाता है। उसके बाद आपको उस पीरियड में आपका जो सीनियर होगा वो डिसाइड करेगा कि यार इससे मेरे को क्या काम करना है। सपोज हो सकता है श्वेतांशु को बोल दिया कि एक काम करो, तुमको बैंक रिकंसिलिएशन चेक करना है। इशिता को बोला कि इशिता तुमको वाउचिंग्स करनी है, जितने भी मेरे पेटे एक्सपेंसेस है उनकी वाउचिंग करनी है, और ये तुमको टेस्ट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। तो श्वेतांशु को जो काम मिला वो डिफरेंट है, इशिता को जो काम मिला वो डिफरेंट है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप पूरे 2 साल या 3 साल एक ही क्लाइंट पे ही काम करते रहते हो रेगुलर। जब आपके पार्टनर को, डायरेक्टर को या आपके मैनेजर्स को ये लगता है कि यार ये बंदा ठीक है आर्टिकल है बट फिर भी एज एन आर्टिकल एक काफी अच्छा काम कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, एक ही क्लाइंट पे डाल के रखेंगे, तो ठीक है इसको स्पेशलाइजेशन करवाएंगे। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग। किसी ने बोला कि मीटिंग विद द लार्ज क्लाइंट, यार देर आर 2 थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now the thing is, sorry. So now the thing is which is very important. Meeting with the large client. अब आप मेरे को बताओ कि यार जो रिलायंस का ऑडिटर होगा वो बिग फोर ही होंगे, वो ज्वाइंट ऑडिटर्स ही होते हैं। Why? The reason is this, उतनी बड़ी फर्म के पास एक कैपेबिलिटी होती है। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, दिस इज द रियल ट्रूथ। एक छोटी सी इस फर्म के पास में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग सारे पार्टनर के पास हो सकती है, कॉमन नॉलेज हो सकती है। बट बिग फोर में क्या होता है कि अगर आपको लीज से रिलेटेड इंटरप्रिटेशन आपको समझ में नहीं आ रहा तो लीज अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको अकाउंटिंग एडवाइजरी टीम का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट इन दैट। आपको बिग फोर के टूल्स यूज कर करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये मेरा फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। इंड AS 115 अगर आपको इंटरप्रिटेशन नहीं आ रहा तो आपको वापस से क्रॉस टीम से इंटरप्रेट करना ही पड़ेगा। बिग फोर के पास में एक मल्टी डिसिप्लिनरी और यू कैन से दैट मल्टी फंक्शनल कैपेबिलिटीज होती है जो कि मिड साइज सीए फर्म के पास में नहीं होती है। उनके पास टैक्सेशन से रिलेटेड भी टीम होगी, उनके पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड टीम होगी, उनके पास नोट उनके पास अकाउंटिंग एडवाइजरी से रिलेटेड टीम होगी। अगर कंप्लायंसेस में भी कोई इशू आता है तो उनसे रिलेटेड उनके पास भी टीम होगी, जो कि बिग फोर में, जो कि अदर सीए फर्म में नहीं होते। दिस इज द बिटर ट्रूथ। बट अगेन बात, someone is saying something. Okay, now the thing is which is very important कि अब बात आती है क्लाइंट इंटरेक्शन की। एक चीज तो आप भूल जाओ कि आपका जो भी सीनियर होगा वो डे 1 से आपको क्लाइंट से इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करेगा। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इट्स अ 0.001% पॉसिबिलिटीज कि अगर आपका क्लाइंट काफी छोटा रहा
तो उस केस में ही आपको इंटरेक्शन बोल दिया कि ठीक है, जाके जूनियर लेवल पीपल से, जो डेप्यूटी मैनेजर हो या एग्जीक्यूटिव हो, उससे जाकर के डिस्कशन करो, उससे जाके प्रोसेस समझ करके आओ। लेकिन उसमें भी आपका सीनियर होगा जो कि आपके साथ में रहेगा। तो आप अज्यूम करो कि जो मेरे फॉर्च्यून 500 की कंपनीज होंगी, उसमें जो बिग 4 के आर्टिकल्स होंगे, उनको किस लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहां पे तो यही हो गया कि अगर मैंने लीज की वर्किंग तैयार कर दी या इंडेस 115 की वर्किंग तैयार करके अपने सीनियर को दे दिया, तो इट इज वन ऑफ द बिग थिंग। बट यस, नो डाउट, एक चीज जो आप सीखोगे बिग 4 में, वर्किंग, हाउ टू एग्जीक्यूट द इंटायर जॉब, हाउ टू प्लान द इंटायर जॉब, दैट इज कमेंडेबल यार। वो चीज आप कहीं नहीं सीख पाओगे। ये चीज तो हम बोलते हैं कि बिग 4 में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि बाकी कहीं नहीं मिलेगी। एंड डेफिनेटली अगर मैं कॉर्पोरेट एक्सपोजर की बात करूं, तो डेफिनेटली आप जाओगे, यू विल हैव सम डिसिप्लिन, you will follow, you can say that you have some dressing sense, the communication, how you interact with the people, कि client के सामने आपको कैसे डिस्कशन करना है, कैसे नहीं करना, even if that people is at a junior level people। क्यों? क्योंकि आप वहां पे रिप्रेजेंट, इशिता अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, इशिता विल बी नोन बाय द ब्रांड ऑफ बिग 4। अगर आज की डेट में पीपल और लॉट ऑफ क्लाइंट इज गिविंग मी द रिस्पेक्ट, it is not because that Gaurav Mishra is a chartered accountant. Prima facie it is because Gaurav is working with PwC। अगर यही चीज मैं अज्यूम करो XYZ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाऊंगा और जाता ऑडिट करने, तो क्या मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती, क्लाइंट ये इज्जत देता? बिल्कुल नहीं यार, दिस इज द बिटर ट्रूथ। बट यस, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक ब्रांड का जो टैग होता है ना, उस ब्रांड के टैग के बाद की जो इज्जत आपको मिलती है, जो रिस्पेक्ट मिलता है, जो कम्युनिकेशन क्लाइंट आपसे करने के लिए उत्सुक होता है, वो ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना बात कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपका नॉलेज लेवल क्या है। सबसे पहले गौरव मिश्रा से लोग बात करेंगे कि वो पीडब्ल्यूसी से काम करता है, उसके बाद गौरव मिश्रा से क्लाइंट डिस्कस करेगा कि गौरव मिश्रा का अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो। एंड दिस आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं आपको एक सपने दिखा दूं कि यार बिग 4 में जाओगे तो आपको ये XYZ मिलने वाला है, भूल जाओ। और अगर किसी ने ये चीज आपको बोला है, आपको सपने दिखा के रखा है कि यार नहीं आपने बिग 4 आ गया ना, उसके बाद तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन द पीपल इन द बिग 4, नॉट, आई विल नॉट टेक द नेम, मैं प्रीवियसली काम भी कर रहा था उस बिग 4 के साथ में। I have seen the articles who did their entire articleship with that firm, but still their team is not ready to take that people on roll after qualifying the chartered accountancy exam। क्यों? क्योंकि उसको पूरे 3 साल में ये पता चल गया कि इस बंदे को सीखने का कोई जुनून ही नहीं है, इस बंदे का कम्युनिकेशन स्किल इतना खराब है, he is not ready to take the initiatives। This is the bitter truth। But again the positive side क्या है? पॉजिटिव साइड एक चीज है, अगर आप ओवर, यू कैन से दैट, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करते हो, बट यस, अगर आप डेडिकेटेड होकर के आपका एक अच्छा एटीट्यूड होता है, और अगर आप एवरेज या मोर देन एवरेज भी काम कर रहे हो, तो याद रखो यार कि जब आप सीए बन जाओगे, तो जिस मैनेजर के साथ आप काम करोगे, वही मैनेजर आपको बोलेगा कि इशिता प्लीज कंटिन्यू विद आवर टीम, श्वेतांशु प्लीज कंटिन्यू विद आवर टीम, इशिका प्लीज कंटिन्यू विद आवर टीम। ये होता है। एंड वहां पे आपको जो बेनिफिट मिलेगा ना, वो बाकी के फ्रेशर से अलग होगा। मतलब बाकी के फ्रेशर की सैलरी अज्यूम करो 10 लाख है, तो आपकी सैलरी ही स्टार्ट होगी 11.5-12 लाख रुपए से। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यार आप मेरे को बताओ कि आपने ब्रांड कंटिन्यू करा, बट वो ब्रांड आपके साथ कहीं रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा, तो मतलब क्या उस ब्रांड का? ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो मैंने आपको जो बोला कॉर्पोरेट एक्सपोजर, नो डाउट कम्युनिकेशन स्किल आपका जो कमिंग 2 ईयर्स आप काफी अच्छा हो जाएगा। टीम के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हैं, अननोन पीपल के साथ में इंटरेक्शन कैसे करते हैं, क्लाइंट के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लर्न।
इन द बिग फोर। वो भले आप 20% सीखो, बट वो सीखोगे जरूर आप। बट यस, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपको लीड लेकर के काम करना है, आपको अच्छे से सीखना है, 2 साल डेडिकेटली काम करना है, तो डेफिनेटली यार, नो मैनेजर और डायरेक्टर वांट टू एग्जीक्यूट द जॉब फ्रॉम ओन सेल्फ। एक आर्टिकल्स, अच्छा, बिग फोर का जो मॉडल होता है, दे वर्क ऑन द कॉस्ट प्लस मॉडल। मतलब आर्टिकल्स की भी कॉस्ट कैलकुलेट होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेशर्स की भी कॉस्ट कैलकुलेट होती है, जो 4-5 साल एक्सपीरियंस होता है उसकी भी कॉस्ट कैलकुलेट होती है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अज्यूम करो इशिता एंड सुधांशु दोनों काम कर रहे हैं, या मान लो मैं भी हूं, आई एम नॉट अ चार्टर्ड, हम तीनों काम कर रहे हैं। श्वेतांशु ने क्या किया ना, श्वेतांशु का एक एटीट्यूड बड़ा ही पॉजिटिव है। श्वेतांशु ने बोला कि ठीक है यार, 2 साल तो काम इज्जत के साथ करेंगे काम, जितना भी काम सिखाया जाएगा मैं सारे काम करूंगा, डेडिकेटली करूंगा, एंड ये मेरा मोटिव होगा। श्वेतांशु के मैनेजर को क्या लगा, एंड श्वेतांशु का जो मैनेजर वही मेरा भी है, वही इशिता का भी है। श्वेतांशु के मैनेजर या डायरेक्टर को लगा कि यार ये बंदा लीड ले रहा है, ये बंदा पढ़ के आता है, जो भी काम तो उसका प्रॉपर वर्किंग पेपर तैयार करता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अब जब भी मेरे को नेक्स्ट टास्क देना होगा ना, उस केस में मैं आपको बताऊं, इशिता, सॉरी, जब मेरे मैनेजर को टास्क देना होगा तो श्वेतांशु विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी रादर देन गौरव एंड इशिता। ये चीज डिपेंड करता है। अच्छा, बट आप जब यही चीज आप मैं बात करूं, मिड साइज सीएफएम की बात करूं, तो ठीक है, बंदा थोड़ा भी काम करे, अच्छा काम करे, ज्यादा काम करे, तो फर्क क्या होगा? ठीक है, एक बंदे को 10 क्लाइंट दे देंगे कि ठीक है, तुम इन 10 का मेरा बैलेंस शीट बना के दे दो। अब आप मेरे को बताओ, जितना आप जानते होगे कि आपकी सिटी में जो भी सी क्लास सिटी या बी क्लास सिटी से बिलोंग करते हो, आप मेरे को रियली बताओ, क्या कोई इतना ध्यान देता है कि हम नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिख रहे हैं? इवन पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड कि मेरा अगर एफडी का बाइफरकेशन होगा, कि मेरी करंट असेट में कितनी आएगी, नॉन करंट असेट में कितना आएगा, वो तो ठीक है, हमने बस पिछले वाले को कॉपी किया एंड आगे बढ़ गए। ये चीज बिग फोर में नहीं होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस विच आई वांटेड टू टेल यू। स्टाइपेंड, यस, नो डाउट यार, अगर काम अच्छे से करोगे, अगर वो लोग आपसे मेहनत करवा रहे हैं, तो थोड़े तो पैसे अच्छे देंगे। बिग फोर का जो नॉर्मली स्टाइपेंड चालू होता है वो 8 से 10 हजार रुपए के बीच स्टार्ट होता है, एंड इट रिवाइजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट थर्ड, जब ये आर्टिकलशिप 3 साल की हुआ करती थी, तो थर्ड ईयर तक आर्टिकल्स के जो स्टाइपेंड थे वो 22,000 तक भी जाते थे। अब आप सोचो ना, आपको आर्टिकलशिप में अगर 10,000 महीने का मिल रहा है, तो यार आपसे बड़ा रईस तो कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बेचारे सीए फर्म वालों को तो वही मिलते 1,500, 2,000, 3,000 जो इंस्टीट्यूट ने बोल रखा है। और अगर इंस्टीट्यूट वो भी मैंडेटरी नहीं करे, तो हमारे सीए फर्म वाले तो पैसे भी ना दें कि ठीक है, तुम अपने ऑटो के फेयर भी खुद लगा के जाओ, बस के फेयर भी खुद लगा के जाओ। ये होता है। इवन इन माई टाइम, द माई स्टाइपेंड इन द फर्स्ट ईयर वॉज आई थिंक 750 रुपीज फॉर द इलाहाबाद सिटी। अब आप सोचो, आप पूरे महीने काम करते हो और आपको 750 रुपए का चेक मिलता है, तो वो मोटिवेशन तो आएगा ही नहीं। बट बिग फोर में जाओगे ना, तो आप पूरे महीने काम करोगे, तो उस केस में क्या होगा, आपको 10,000 रुपये मस्त आराम से फर्स्ट ईयर में मिल गया। सो दिस इज वन थिंग। बिग सिक्स की भी मैं अगर बात करूं, बीडीओ, जीटीएम, प्रोटिविटी, आपको यहाँ पे भी स्टाइपेंड मोर और लेस इतना ही मिलेगा, बस 1,000-1,500 रुपए का फर्क होता है। ठीक है, उससे ज्यादा फर्क नहीं होता है। बट यस, अगर मैं काम वाइज बात करूं कि वर्क वाइज, डेफिनेटली अगर बिग फोर में नहीं मिला, तो यार बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। बिग सिक्स में मिलता है तो बिंदास जाओ, ज्वाइन करो, बिकॉज इन सम ऑफ द प्रैक्टिसेस बिग फोर और बिग सिक्स कभी ना कभी जो है ना पैरेलल हो ही जाएंगे। आज की डेट में प्रोटिविटी के पास में इंटरनल ऑडिट का काम बहुत ज्यादा है, उनके पास भी रिलायंस जैसे क्लाइंट है, और बिग फोर के पास भी रिलायंस जैसे क्लाइंट है। तो बिग फोर और बिग सिक्स डेफिनेटली, नो डाउट, बिग फोर एक ब्रांड है, बट अगर बिग सिक्स में भी करने को मिलता है तो आपको आंख बंद करके ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं टॉप 10 की बात अभी नहीं कर रहा, वो मैं बाद में बात करूंगा। अब आप मेरे को बताओ कि अगर आप इतना बड़ा ब्रांड लेके जाओगे, आपको लगता है कि बिग फोर में ज्वाइन करना है,
आपको ये दिमाग में नहीं आता कि यार इनके इंटरव्यूज भी कैसे होंगे, इनका शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया कैसे होगा, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा ना। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर मुझे बिग फोर में जाना है तो मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा होना चाहिए, मतलब मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए। एक चीज याद रखो यार, इंटरव्यू तो टफ होने ही वाला है। बिग फोर में जाओगे, आपका इंटरव्यू टफ होगा, एंड इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी अराउंड योर प्रिपरेशन, अराउंड योर एग्जाम्स, जो भी आपने एग्जाम देकर के आया उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा कैसे क्या होता है। बट एक चीज तो है, इंटरव्यू टफ होने वाला है। बिग फोर और बिग सिक्स के इंटरव्यू में बस केवल 19 और 20 का फर्क होता है, या 18-20 का फर्क होता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं होता है। बट अपार्ट फ्रॉम द बिग सिक्स, बाकी के जो इंटरव्यूज होते हैं टॉप 10 टॉप 20 वाले, वो उतने ज्यादा टफ नहीं होते जितने ज्यादा बिग फोर के होते हैं या बिग सिक्स के होते हैं। तो ये चीज आपको एक ध्यान में रखनी है। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा था कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया कि बिग फोर अगर आपको लगता है ज्वाइन करना चाहिए तो क्यों ज्वाइन करना चाहिए। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस while selecting the firm big four or big six। अब बात आती है कि अपार्ट फ्रॉम द बिग फोर और कौन कौन सी फर्म है। ये क्वेश्चन सबको आना चाहिए। द क्वेश्चंस, अब किसी ने नाम सुना होगा आरएसएम, सुरेश सुराना, अनीजा एसोसिएट्स, एसएस कोठारी, लोडा एंड कंपनी। मुंबई में जो लोग होंगे उनको पता होगा खिमजी कुनवर्जी। यस करेक्ट श्वेतांशु, यस करेक्ट, आई एम कमिंग ऑन टू दैट पार्ट। एसके पटोतिया, किसी ने अगर नहीं सुना है तो। टीआर चड्ढा, आई थिंक टीआर चड्ढा इज अगेन वन ऑफ द वेरी गुड फर्म विद इन दिल्ली। एसके पटोतिया, दिस इज अगेन वन ऑफ द अपर मिड साइज सीए फर्म इनटू मुंबई। अनेजा एसोसिएट्स, ये इंटरनल ऑडिट में काफी अच्छी फर्म है, which is having a similar number of clients what the big four are having। तो अगर जिसको आईए में एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना है तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी, अगर बिग फोर में नहीं मिलता तो अनेजा ज्वाइन करो, मतलब बेटर है। अगर आपको बिग फोर बिग सिक्स में नहीं मिलता, एसएस कोठारी दे आर अगेन हैविंग अ क्लाइंट ऑफ Fortune 500 or a big unlisted company. Lodha and Company, again, these are the few top 10 firms. I'll share the name into the groups as well कि टॉप 10 और टॉप 20 कौन कौन सी फर्म्स है, ठीक है। एंड यू कैन सर्च ऑन द गूगल, आप उनके रिव्यूज पढ़ सकते हो। बट अगर इसके अलावा नहीं मिला और किसी को लगता है कि ठीक है यार मेरे को नहीं मिला इन सब में अपॉर्चुनिटी, तो आप कुछ चूज करना चाहिए कि आप जिस सिटी में हो उस सिटी की जो सबसे अच्छी फर्म है आप उसमें ज्वाइन करो। उसके डिसएडवांटेज क्या है वो मैंने बता दिए, बट इट इज नॉट लाइक दैट डिसएडवांटेज। इट इज लाइक दैट कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले तो कहीं तो करना है यार ना, 2 साल की आर्टिकलशिप कहीं तो करनी है मेरे को। वहां पे आप कौन से अच्छे काम सीख सकते हो। हाँ, बिग फोर में एक चीज है जो आप नहीं सीख पाओगे जो कि बाकी जगह सीखोगे। एक टॉप 20 फर्म में आप वहां पे टैक्सेशन के काम भी सीख सकते हो, आप वहां पे स्टार्ट ऑडिट के भी काम सीख सकते हो, इंटरनल ऑडिट के भी सीख सकते हो, एंड एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हो। बट बिग फोर में आपकी जो प्रोफाइल होगी वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोफाइल होगी कि अगर आप स्टार्ट ऑडिट में चले गए तो स्टार्ट ऑडिट ही करोगे आप, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे। आईए में हो तो आप आईए ही करोगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करोगे। ये एक लिमिटेशन होता है बिग फोर का, जो कि बाकी के सीए फर्म्स के साथ में नहीं होता है। नाउ द थिंग इज,
पीपल आर थिंकिंग कि यार ठीक है, अब इनके इंटरव्यूज जो होते हैं या मेरे को कौन से डोमेन में जाना चाहिए, कौन से डोमेन में नहीं जाना चाहिए। अब मैं बताता हूं कि डोमेन की बात है। इन द बिग फोर मैंने आपको बोला देयर विल बी अ डोमेन कॉल्ड ऑडिट। Into the audit there will be a domain called stat and internal. Then you will be having a domain taxation. Under taxation there will be a multiple domains called as direct tax, called as GST, called as transfer pricing, called as HNI taxation, called as corporate taxation. And apart from stat, internal and taxation, there will be a profile which will be into the management consulting side. Basically it will be like you can say merger acquisition. Under the merger acquisition you will find as deals valuation, private equity valuation, equity shares valuation. These types of opportunities will be available, and few others profile like forensics, technology consulting and all those things. So ये सारे प्रोफाइल्स आपको बिग फोर में मिलेंगे जो कि बाकी जगह नहीं मिलेंगे। बिग सिक्स में आपको कुछ प्रोफाइल्स मिलेंगी जो कि सिमिलर होंगी, जो कि बिग फोर के जैसे होंगी। जैसे स्टार्ट ऑडिट हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, टैक्सेशन में आपके ट्रांसफर प्राइसिंग हो गए, जीएसटी हो गए। एंड ये जो टैक्सेशन, अगर किसी ने बोला मेरे को टैक्सेशन में जाना है, तो बिग फोर में अगर आप आते हो तो टैक्सेशन में आपको सारे टैक्सेशन नहीं मिलता। वहां पे आपको मिलेगा आइदर यू विल गो इनटू द डायरेक्ट टैक्स, मींस या तो आप एचएनआई टैक्सेशन में जाओगे या तो आप कॉर्पोरेट टैक्सेशन में जाओगे। अगर आपको इनडायरेक्ट मिला तो आप जीएसटी में चले जाओगे। अगर वो भी नहीं मिला डायरेक्ट टैक्स में तो फिर आप हो सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग में चले जाओगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटरव्यू, बट देयर विल बी अ लिमिटेड फील्ड। बट यही चीज अगर मैं सीए फर्म के साथ बात करूं तो सेम बंदा टैक्सेशन में आप एचएनआई टैक्सेशन भी सीख सकता है, सेम बंदा कंपनी का टैक्सेशन भी सीख सकता है, सेम बंदा जीएसटी भी सीख सकता है। और आज की डेट में तो यार जीएसटी कितने काम हो गए कि जिसको भी देखो सारे ऑफिस में अच्छी खासी जीएसटी की फाइल्स होती है। ये डिफरेंसेस होता है जब आप बिग फोर या बिग सिक्स में ज्वाइन करते हो। नाउ द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमको क्या चूज करना चाहिए। मेरा सिंपल सा टेक होगा, अगर मैं आपको अपने आप को आपकी साइड पे रखूं, अगर मेरा ये थॉट प्रोसेस क्लियर है कि मुझे आगे चल के जॉब करना है एंड मेरा जो इंटरेस्ट एरिया है वो केवल स्टार्ट ऑडिट है, तो आई थिंक यू शुड एम फॉर बिग फोर और बिग सिक्स। पहली प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। एंड अगर नहीं मिला तो आपको टॉप 10 फर्म जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, इनके नाम है मार्केट में काफी बड़े नाम। आप सबसे पहले आप चूज करो कि आपको किस डोमेन में जाना है। एंड डोमेन आपका सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए। आपने अपने सीनियर से सुना, आपने अपने फ्रेंड से सुना और आपने उठा करके आपने बोला मेरे को तो मर्जर में जाना है। भाई मर्जर में जाने के पहले आप अपने आप को तो इवेलुएट करो कि मर्जर में जाना है तो आपके पास में क्या उतना अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि नहीं है। एंड याद आया एजुकेशनल बैकग्राउंड से मैं बात कर रहा था इंटरव्यू प्रिपरेशन की या इंटरव्यू टफनेस की बात कर रहा था। सबसे पहली बात आती है कि आपका सीवी शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगा यार, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। सीवी शॉर्टलिस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपनी सीवी बनाते हो, एंड यस किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या सीवी डोमेन वाइज बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, माय आंसर एंड क्लियर कट आंसर विल बी नो। आज की डेट में यू आर गोइंग टू परस्यू फॉर अ आर्टिकलशिप, यू आर गोइंग टू परस्यू फॉर अ आर्टिकलशिप, तो आपके केस में कोई भी डोमेन वोमेन कुछ नहीं होता। आप अपने सीवी में दिखाओगे क्या, एंड सीवी बनाना कैसे बनाना है, इट इज टोटली ऑल टुगेदर अ डिफरेंट माइंड गेम। देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ फॉर्मेट जो कि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है सारे बिग फोर्स में। तो एक चीज तो भूल जाओ कि आपको डोमेन स्पेसिफिक सीवी बनाने हैं। मतलब आपको तो पता भी नहीं ना, आप तो अभी आईपीसीसी देकर के आए हो,
तो आप डिसाइड भी कैसे कर सकते हो कि आपको इस डोमेन में जाना है, तो आपके सीवी में ये 4 चीजें लिखी होनी चाहिए। कभी नहीं हो सकता यार ये चीज। नाउ द सेकंड पार्ट, ये चीज आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा फील्ड चूज करना है। अगर आपको बिग 4 जाना है, कहीं बिग 4 में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो सबसे पहले आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखो कि आपका क्या, इफ यू आर हैविंग अ गुड marks into 10th, 12th and graduation as well as into the CA exam, then be confident, not overconfident, be confident। मस्ती से सीवी बनाओ, अपनी अच्छी सी सीवी बनाओ, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को हाईलाइट करो, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को हाईलाइट करो और बिग 4 में अप्लाई करो अपने कनेक्शंस के थ्रू। एंड कनेक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक श्वेतांशु का सीवी जैसे उसने बोला कि उसका रिफर हुआ है, आई थिंक कनेक्शंस विल हेल्प यू अ लॉट इन रिफरिंग योर सीवीज। एंड बिग 4 में जब वैकेंसीज आती है तो सबसे पहले इंटरनल बंदे को पता चलती है, वो लोग पहले रिफर करते हैं, उसके बाद बाकी के लोगों का सीवी भी जाता है। बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए हमेशा इंटरनल तो कहीं ना कहीं प्रिफरेबल होगा ना, उसको तो प्रेफरेंस देना ही पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आपको बिग 4 में जाना है या बिग 6 में जाना है, या आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, सबसे पहले अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड इवेलुएट कर लो यार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगता है कि आपके फाउंडेशन ही 5 अटेम्प्ट में 4 अटेम्प्ट में क्लियर हुए, आईपीसीसी ही आपका 4 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, उस केस में क्या, अगर आप मेरा पूछोगे तो मैं बोलूंगा यार कि बिग 4 अगर आप सोचो तो अच्छी चीज है, सोचो, बट द बेटर ट्रूथ इज यार आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज आपसे आगे भी लोग खड़े हैं जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुए। तो पहले अपने आप को इवेलुएट कर लो। So these things plays a very important role when you are thinking for your articleship. Now the thing which is very important, what I'll say, अब बात आती है डोमेन की, किस डोमेन में। यार एक चीज बोल जाओ कि डोमेन वाइज कोई भी सीवी आर्टिकलशिप लेवल पे नहीं बनता है। आप अपने एचआर इंटरव्यू में बोल सकते हो कि हाँ आपका प्रिफरेबल डोमेन क्या है, बट प्रिफरेबल डोमेन अगर आप बोलोगे तो स्टार्ट ऑडिट में जाना है, इंटरनल में जाना है, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज लेकर रखना पड़ेगा कि क्या है, नॉट मोर देन, बट स्टार्ट ऑडिट होता क्या और क्या चीजें उसमें कवर होती, इतना तो बताऊंगा। अब बात आती है वैकेंसीज की, कि अज्यूम करो कि बिग 4 में वैकेंसीज आई, रिजल्ट आने वाला है 5 से 10 जनवरी के बीच में, और अभी तो नया साल भी आने वाला 4, आई थिंक आफ्टर 4 और 5 डेज, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास 10 से 12 दिन है रिजल्ट आने में। नाउ द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो वैकेंसीज आती है मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज्यादा वैकेंसीज सबसे पहले स्टार्ट ऑडिट में आती है, फिर इंटरनल में जाएगी, फिर टैक्सेशन में जाती है, उसके बाद जो बची हुई वैकेंसीज होती हैं वो मर्जर एक्विजिशन में जाती है। अगर मैं वेट करूं तो इन टर्म्स ऑफ वेटेज 80 to 85% comes into the start, or you can say that major portion 70% into the start, 20% into the IA, 5% into the taxation, and other 5%, 2 or 3% into the other field। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में नहीं जाना है। अब हो सकता है कोई तो इसमें ऐसा होगा, एक तो सबसे महान लोग होंगे जिनको बिग 4 में मिल गया अपॉर्चुनिटी, बड़े हो नहीं मेरे को तो टैक्सेशन में जाना था, मेरे को नहीं मिला तो मैं छोड़ रहा हूं। तो भाई फिर आपके पास में एक अल्टरनेट ऑप्शन होनी चाहिए। सो दिस थिंग यू शुड कीप इन टू माइंड कि अगर आपको बिग 4 में जाना है तो क्या सोचना चाहिए। Now the second part, let's come on to the question, and one thing on to the concluding remarks. If I tell you that as someone said communication skill, yes, communication skill plays a very important role, एंड ये कम्युनिकेशन स्किल्स आएगी कब, जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में, जब आप अननोन पर्सन से ढेर सारा डिस्कशन करोगे तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं।
आपके अंदर की जो एक्सप्रेशन है, आपके अंदर का जो डिस्कशन है, जो आप कहना चाह रहे हो वो सारी चीजें निकल जाए। आप अपने जब ये फ्रेंड सर्कल से डिस्कस करोगे ना, आप अच्छे से कर लोगे बिकॉज आप उसके साथ कंफर्टेबल। बट इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस विथ मी, आई एम अननोन पर्सन फॉर यू, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके थॉट प्रोसेस काफी कम निकलेंगे बिकॉज आप तो मेरे को जानते भी नहीं हो ना। हो सकता है अगर आप जानते भी हो तो नहीं बोल पाओगे, क्यों? क्योंकि मैं अननोन पर्सन, यही डिपेंड करता है वहां पे जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। एंड बिग फोर में जो इंटरव्यू होते हैं यार, वो तो सिंपल सा फंडा है कि आपकी सीवी रिफर होगी, फिर आपके एक यू कैन से दैट यू कैन से दैट उस टाइम पे फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, फिर उस टेस्ट में शॉर्ट लिस्टिंग होती है। एंड सारे बिग फोर्स में ऐसे नहीं होते हैं यार, कुछ ही बिग फोर्स में होते हैं। जैसे राइट इन द पीडब्ल्यूसी, आई डोंट थिंक शायद कि वहां पे होता है, केपीएमजी में भी होता था, बट कुछ टीम थी जहां पे नहीं होता था। ईवाई में हमने लास्ट टाइम किसी को रिफर करा था तो वहां पे भी नहीं हुआ था। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टीम टू टीम। नाउ द सेकंड पार्ट इज कि जब आपके वो बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, देन उसके बाद अगर सीवी ढेर सारी तो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। ग्रुप डिस्कशंस में एक एब्सर्ड टॉपिक या कोई भी एक टॉपिक दिया, उस टॉपिक में आपको 10 मिनट का होता है, इसमें एक नंबर ऑफ पीपल, आप सबको अपने अपने को एक व्यू पॉइंट रखना होता है। एंड उस व्यू पॉइंट का पर्पस क्या होता है कि सामने वाले का थॉट प्रोसेस क्या है, कैसा सोच रहा है। ये चीजें जो होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन से, कि अगर आप बिग फोर ज्वाइन करोगे या बिग सिक्स या टॉप 10 या टॉप 20। एंड एट द एंड मैं सबको एक चीज वापस बोलूंगा कि अगर आपको बिग फोर या बिग सिक्स या टॉप 10 नहीं मिला है तो इट इज माई एडवाइस टू ज्वाइन एनी ऑफ द गुड फर्म इन योर सिटी, बिकॉज हर एक सिटी में कोई ना कोई एक या दो फर्म ऐसी होती है जहां पे थोड़े अच्छे काम होते हैं। और अगर आपने वहां पे भी अच्छे से काम सीखा 2 साल में, तो आपको अपॉर्चुनिटी बिग फोर या बिग सिक्स में सीए बनने के बाद में मिल जाएगी। और अगर किसी ने ऐसा बोला है कि वो बिग फोर वाले को प्रेफरेंस मिलता है, तो भाई वैसे जो परसेंटेज होते हैं वो केवल 5 या 10 होते हैं। 90% जो पीपल होते हैं ना, वो विदाउट बिग फोर या बिग सिक्स वाले आर्टिकल्स होते हैं। तब आप सोचो ना किसके नंबर ज्यादा होते हैं। सो दीज थिंग्स यू शुड कीप इन टू माइंड वाइल सेलेक्टिंग कि आपको कौन से फर्म में आर्टिकलशिप करनी है, कौन से फर्म में नहीं करनी है। नाउ लेट्स take a question. So I think there are a lot of messages. If someone can, जिसको जिसको भी क्वेश्चन है, can you please unmute yourself and ask the questions, please? क्या हो गया, सारे सो गए या मैंने बोर करा सबको? Sir, may I? Yeah, please. Yeah, Diksha. So actually the doubt was I am having the interest in 2 of the domains. So should I select it beforehand or should I go with the flow, like जहाँ पे भी बिग फोर में मिल गया उसी में अंदर चले जाऊँ? दीक्षा, मैंने जैसे पहले ही बोला कि जब कोई भी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, होता क्या है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज जो है वो स्टैट ऑडिट डिपार्टमेंट में होती है, उसके बाद इंटरनल में होती है, उसके बाद टैक्सेशन में होती है, एंड उसके बाद बाकी के प्रोफाइल्स में होती है। अगर किसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं तो आप वहां पे अप्लाई कर दो, ठीक है। बट अगेन माय सजेशन इज दिस कि अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो दोबारा किसी और प्रोफाइल के लिए अप्लाई मत करो विद द सेम फॉर्म, because entire Okay. profile is being tracked. I know some people have told you or some people will tell you कि what are the other ways to apply within the same firm to the different way. But again मेरा सजेशन वही है कि अगर आपको लगता है टैक्सेशन में जाना है, मैं अगेन बोलूंगा टैक्सेशन में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती हैं एज कंपेयर टू स्टैट एंड इंटरनल। इफ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल इन योर नॉलेज व्हाट यू गेन्ड ड्यूरिंग सीए इंटरमीडिएट, कि आपको लगता है टैक्सेशन आप काफी अच्छा कर जाओगे, तो उस केस में फिर आपको टैक्सेशन के लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अदरवाइज आई सजेस्ट कि ठीक है, जहां पे ज्यादा वैकेंसी है उसके लिए आप जाओ। सर इज इट दैट लाइक आप ऐसा बोल रहे हो कि स्टैट ऑडिट की वैकेंसी सबसे पहले आती है बाकी सबकी बाद में आती है, लाइक पहले स्टैट ऑडिट की फिल होती है फिर बाकी की आती है? इज इट द ऐसा थिंग नहीं यू है आर ट्राइंग टू से कि स्टैट दीक्षा, ऑडिट पे सबसे ज्यादा होती है, यू आर ट्राइंग टू से दैट? सो आई एम ट्राइंग टू से सेकंड पॉइंट, जो वैकेंसीज होती है ना वो मोर और ओके लेस सब सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे ही निकलती है, ठीक है।
सारी वैकेंसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे ही निकलती हैं। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपका टैक्सेशन का अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर पीपल, जैसे सपोज करो एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अगर आपको सपोज टैक्सेशन में अच्छा नॉलेज है, पीजीबीपी का अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, पीडीएस वगैरह की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको लगता है एंड आपके एकेडमिक्स भी काफी अच्छे हैं ना, और आपको लगता है टैक्सेशन में ही जाना है, तो यू शुड स्टिक विद वन प्रोफाइल। बट अगेन द चांसेस मैं जो बोलूंगा वो स्टैट में ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू दीज प्रोफाइल्स। सो आई डोंट थिंक सो कि आपका प्रेफरेंस अभी होना चाहिए यार। गो विद, अगर आप बिग फोर में जा रहे हो तो मेरा जो पर्सनल सजेशन होगा ना, गो फॉर द ब्रांड एडिशन रदर देन ऑन द डोमेन सिलेक्शन। यार डोमेन सिलेक्शन तो आप सीए बनने के बाद तो करोगे ना, मतलब आर्टिकलशिप 2 साल की आर्टिकलशिप में और टैक्सेशन में आप सीख भी कितना पाओगे, या स्टार्ट ऑडिट में कितना सीख पाओगे। तो बेटर होगा कि आप जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, पर्सनली मैं आपको बोलूंगा स्टार्ट एंड इंटर्न में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, गो विद दैट। Yes, sir. कम से कम Got that. आपका And या प्लीज। now you first continue. I will let it afterwards. नो आई वाज सेइंग कि जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना उसमें पहले जाने का, ठीक है। बाद का तो यार जब 2.5 साल बाद आप सीए बन जाओगे तो मस्त आराम से करियर चूज करना, फिर तो कौन ही बोलने वाला है। फिर आपको अगर मान लो हाँ, बिग फोर में नहीं समझा. मिलता तो आपको पास और भी टैक्सेशन, अगर आपको टैक्सेशन में जाना है तो काफी ढेर सारी फर्म है यार जो बिग फोर से काफी अच्छा कर रही है। Okay, got that. And one more question was, he said like after results, like obviously some of the persons like me also, तो उन लोगों ने email IDs वगैरह सर्च करके रखी होगी या any of the references and all, तो सबको एक ही टाइम पे अप्लाई कर देने का कि एक एक पर्टिकुलर फॉर्म पे अप्लाई करने का? नहीं यार, मैं तो बोलूंगा कि अगर आपकी आपको कनेक्ट्स हैं, ठीक है, सी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही बार में अगर आप बिग फोर में किसी को भेज रहे हो ना, तो हम्म. कोशिश करो 2 या 3 लोगों को भेजो, उससे ज्यादा लोगों को मत भेजो, लाइक अ बल्क प्रोफाइल, क्योंकि जब सारे लोग अपलोड करेंगे ना तो वो एक दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो बेटर होगा कि हाँ सारे बिग फोर में एक बार आप भेज सकते हो, बट अगर आप एक ही बिग फोर में आप 10 लोगों को अप्लाई करोगे तो दैट इज नॉट द गुड थिंग। आप जानते हो कि आपको लगता है कि यार ये बंदा ऑलरेडी इस फॉर्म में 4 साल 5 साल से, तो आप प्रीफर उसको करो कि उसको ही भेजो। ओके, मतलब लाइक एक ही फर्म में 2 या 3 जनों को भेजा वो बहुत हो गया, उससे ज्यादा एक ही फर्म के अंदर नहीं भेजना चाहिए. नहीं यार नहीं, मतलब ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बिकॉज होता क्या है ना कि जैसे मेरा जो पोर्टल है वर्कडे करके, उस वर्कडे पोर्टल में क्या होता है, मतलब मैं एक बार अगर अप्लाई करूंगा तो उसी वर्कडे पोर्टल में मुझे लगता है कि अज्यूम दीक्षा आपका प्रोफाइल है, तो आपकी प्रोफाइल 4 लोगों ने और नहीं करी है, ठीक है। तो एचआर ने हम्म. अगर एक बार शॉर्टलिस्ट कर लिया तो दोबारा फिर आपको करेगा भी नहीं शॉर्टलिस्ट। ओके, मतलब लाइक इफ बार बार वही एक ही रेज्यूमे फॉरवर्ड हुआ तो निग्लेक्ट होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है. करेक्ट, करेक्ट। ओके. कोशिश एंड करो कि जिनको अदर आप थिंग ज्यादा वाज, अच्छे से जानते हो आप उनको प्रोफाइल भेजो। ओके, एंड अदर थिंग वाज कि लाइक इफ हमने 2 से 3 फर्म्स को एक ही टाइम पे अप्लाई किया, एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू की डेट्स वगैरह वेरी करेगी हर एक फर्म की, तो सपोज ऑन 15th of January और इन केस 30th of January एक ही दिन पे 2 फर्म्स का इंटरव्यू केस है, तो किसको पहले लाइक अप्रोच करना चाहिए and किसको डिले करने का रीजन कैसे देना चाहिए एग्जैक्टली? लाइक ऑब्वियसली इफ यू आर डिलेइंग तो वहां पे पोर्ट्रे गलत हो जाएगा कि यू आर डिलेइंग विद एनी ऑफ द पर्सनल रीजंस और व्हाट, लाइक are you getting me what I'm trying to say or should I elaborate more? ओके, सो नाउ आई अंडरस्टैंड। सो योर क्वेश्चन इज कि सपोज मान लो कि अगर केपीएमजी या ईवाई दोनों का है, ठीक है, दोनों का इंटरव्यू सेम डे हो गया, करेक्ट। Yes, तो एक चीज exactly. तो याद रखो कि आपको जो दोनों का मेल होगा ना, किसी का मेल पहले आएगा किसी का मेल बाद में आएगा, इज इट? हाँ. हाँ. ठीक है ना। तो आपको लगता है कि जिसका पहले आ गया आपको पहले उसमें देना चाहिए, मेरा भी प्रेफरेंस वही होता है कि जिसका मेल पहले आया सबसे पहले मैं उसका इंटरव्यू अटेंड करूंगी। अगर मान लो Okay. टाइमिंग सेम हुआ तब तो जिसका बाद में मेल आया आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो सिंपली, कि दैट यू आर नॉट अवेलेबल दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू आर हैविंग सम योर पर्सनल कंसर्न, यू कैन सिंपली से दैट, उसमें कोई भी हासिल नहीं Okay. है, ठीक है ना। बट अगर वो इंटरव्यू Okay. की टाइमिंग डिफरेंट है देन आई विल से कि डोंट पोस्टपोन, आपको आधे घंटे का गैप मिल रहा है, मोर देन सफिशिएंट। Okay. तो लाइक एक ही दिन पे अगर टाइमिंग्स एग्जैक्ट सेम हो रहे हैं तो उसको डिले करना चाहिए, बट एक ही दिन पे अदरवाइज नहीं अगर करना चाहिए, टाइमिंग्स हमारा डिफरेंट है तो इतना सीन नहीं होगा. ओके. नहीं ओके, गॉट दैट अदरवाइज, हाँ कंप्लीटली. अदरवाइज आपको चेंज नहीं करना चाहिए।
Okay. Hmm. And one more last question please. was कि like जब GD राउंड होता है तो वहाँ पे obviously 10 to 12 like साथ में होते हैं, 10 to 12 कैंडिडेट्स एक ही टाइम पे होंगे, तो if it would be better to initiate the GD or conclude the GD or say in between, like मैंने एक्चुअली 3 से 4 मॉक GDs में पार्टिसिपेट किया था अभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन OC सेशंस में भी, तो देयर वाज एन इशू कि इफ हम 4 से 5 दिन GD में बैठ के कर रहे हैं ना, तो आई एम लाइक चांस मिल रहा है बोलने का, बट इफ 10 से 15 दिन एक ही टाइम पे बैठ के कर रहे हैं ना, तो वो चांस नहीं मिलता, लाइक इन ऑल वे वो GD से कब डिबेट में ट्रांसफर हो जाता है ना और लोगों के साथ बैठे बैठे वो समझ ही नहीं आता। करेक्ट। सी ये होता है, मेरे को पता है, ये होता है जब 4-5 लोग होते हैं ना तो काफी कम, मतलब सब बोल लेते हैं, और जब 10 से 12 होते हैं तो कोई ना कोई तो एग्रेसिव होकर के अपना वो GD फिर GD नहीं होता, ग्रुप डिस्कशन होने के बजाय वो ग्रुप डिस्प्यूट टाइप का हो जाता है। एग्जैक्टली। सी मैं अगेन वापस बोलूंगा कि एक चीज होता है कि जो सबसे पहले लीड लेता है ना उसको एडवांटेज मिलता ही मिलता है, एंड जो कंक्लूड करता है उसको भी एडवांटेज मिलता है। एग्जीक्यूशन में एडवांटेज किसको मिलता है? मिड ऑफ द टाइम में जिसने सबसे अच्छे व्यू पॉइंट रखे हो। एंड अगेन इसके भी काफी प्लस एंड माइनस है। दिस इज नॉट अ, यू कैन से दैट आप मुझसे पूछोगे कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, दिस इज अगेन 1 hour ऑफ डिस्कशन और 2 hour ऑफ डिस्कशन, GD के ऊपर कितना भी कर लो कम है। बट यस, एट आर्टिकलशिप लेवल देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन टू माइंड। बट अगर मैं जनरल बात करूं तो जो लीड लेता है और जो कंक्लूड करता है दोनों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब बेनिफिट मिलता है। ओके राइट, एक्चुअली ना जब लास्ट मैंने GD फेस किया था ना उसमें लेजिट आई ट्राइड 4 to 5 टाइम्स टू इनिशिएट, लाइक इनिशिएट करने के बाद भी मुझे पीछे रखा दिया, लाइक ऑनलाइन था एक्चुअली इसकी वजह से माइट भी ज्यादा फेस होगा इशू, बट लाइक 4 से 5 बार डील करके भी मैंने अपनी पॉइंट एंड तक नहीं रख पाई, तो दैट वाज द पॉइंट कि आई शुड गो एंड स्टार्ट और एंड एंड, क्योंकि ऑब्वियसली बीच में तो वो चांस इतना इजीली मिलता नहीं है, तो जो लाइक मेंटर कर रहे थे ना उस मोमेंट पे, ही इज अ CA फाइनलिस्ट, लाइक ही वाज मेंटरिंग इन सच अ वे कि इफ यू आर इनटू मिड मिड, लाइक तूने स्टार्ट भी नहीं लिया एंड भी नहीं लिया, तो इन मिड ना वो जो भी जज है वहां पे या जो भी पार्टनर वगैरह डील कर रहा है तुमसे, वो वुड बी इन सच अ वे कि वो तुम्हारा पेशेंस लेवल देख लेगा या तुम लोग ने जितनी बार ट्राई किया ना वो चेक कर लेगा, बट तेरी पॉइंट रखना भी एक मोमेंट पे इम्पोर्टेंट है, तो आई वाज कि Obviously, he या was तो right. मैं He was स्टार्ट right. में चले जाऊँ। Yes, he was right. See, अगर आप पेशेंस रखे हो ना, आपको लग रहा है कि ठीक है सब लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं मुझे नहीं बोलना है, तो इट इज अगेन शोइंग कि तुम्हारा कोई व्यू पॉइंट है ही नहीं। बट अगेन एज आई राइटली सेड टू यू दीक्षा, कि GD अगेन इट इज नॉट अ वेरी, यू कैन से दैट ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर। बट मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जो बंदा या जो भी पर्सन स्टार्ट करेगा और एंड करेगा उसको एक एज मिलता ही है एज कंपेयर टू अदर्स। बट यस, अपना व्यू पॉइंट अगर आप स्टार्टिंग एंड कंक्लूजन नहीं रखते हो तो जो बीच का पार्ट होता है उसमें आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिले, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये चीज जब आप मल्टीपल नंबर ऑफ राउंड ऑफ डिस्कशन करोगे, जब आप ये चीज डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे करोगे, होता क्या है ना कि आपको हो सकता है 1 मिनट बोलने का टाइम मिले, बट जो 10 लोगों ने बोला ना उसमें आपने ऐसा कुछ बोला जो बाकियों को क्लिक कर गया। सो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट। हाँ या एक्चुअली वो ऑब्वियसली वो समझ गया कि बीच में हम डील कर रहे हैं ना, यू हैव टू लाइक या इशिता प्लीज। इशिका यू आर, सो यू हैव रेज्ड योर हैंड। Yes, sir. हाँ बोलो ना। Yes, sir. Sir, I wanted to ask that I'm not that pretty good in the taxation field, or I would say pretty weak in that. And my preferable domains are stat audit, then management consulting, then the mergers and acquisitions. So will it be impacting much my taxation? I'm not that good. नहीं मतलब मैं सी, एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है। सो नॉर्मली व्हेन वी इन आवर सेशन व्हेन वी कंडक्ट अ 7 day ऑफ सेशन एट CA गुरुकुल, सो दीस टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच वी कवर, ओके। बट यस, नटसेल अगर मैं अभी आपको बता दूं, अगर आपका टैक्सेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो टैक्सेशन की होगी, स्टार ऑडिट आपका डोमेन है तो आपको कंपनी ऑडिट्स के बारे में थोड़े बहुत पता होंगे, बैलेंस शीट के बारे में क्या क्या हेडलाइंस और क्या क्या आइटम्स है वो पता होंगे आपको, करेक्ट। Yes, sir. एंड अभी अपडेट्स क्या है वो आपको सी, इससे ज्यादा इंटरव्यू और आपसे कुछ पूछेगा नहीं, इसके अराउंड ही आपको वो सारे क्वेश्चंस पूछेगा और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा।
एंड मैं अगेन वापस बोल रहा हूँ कि जैसे आपने बोला कि सबसे पहले आपको स्टार्ट देन एमसी देन अदर, सो आई थिंक यू शुड फोकस कि आपको सबसे पहले स्टार्ट मिले, अगर स्टार्ट नहीं मिलता तो इंटरनल मिले, इंटरनल नहीं मिलता तो टैक्सेशन में। ऐसा नहीं कि टैक्सेशन में जाने के लिए आपको बहुत एक तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बट मैनेजमेंट कंसल्टिंग में क्यों बोलता हूँ लेस, बिकॉज नॉर्मली वहां पे क्या होता है, आइदर पीपल एट अ रैंक लेवल दे गो और पीपल हु आर हैविंग अ फर्स्ट अटेम्प्ट एवरी टाइम विद अ गुड मार्क्स, तो उस केस में ही ये सही होता है। सो यू शुड फोकस अकॉर्डिंग टू दैट। Okay, sir. And sir, what about mergers and acquisitions? सी मर्जर एक्विजिशन का अगर मैं बात, मैंने आपको बोला ना, मर्जर एक्विजिशन, डील्स, वैल्यूएशन या एमसी, ये चार, एमसी तो एक पूरा अम्ब्रेला हो गया, उसके नीचे जो है ना मर्जर एक्विजिशन, डील्स, वैल्यूएशन, ट्रांजेक्शन एडवाइजरी, ये सारी चीजें आती हैं। इन केसेस में वैकेंसीज काफी कम होती है, बिकॉज इनके जो काम होते हैं वो रिकरिंग नहीं होते, मर्जर हमेशा नहीं हो रहा होता है। मर्जर जो होगा वो एक कंपनी का जब मर्जर स्टार्ट होगा तो 1 से 1.5 साल तक पूरा मर्जर चलता रहता है, उसमें मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना वो सबसे कम होती है। Okay, sir. And sir, one more See, doubt. this I'm saying कि I'm not criticizing this profile, but as I'm saying that this is the real truth यार। मतलब आप सोचो ना, एक एग्जांपल लेते हैं, आप मेरे को बताओ, क्या वैल्यूएशन आप मेरे को बताओ, स्टैट ऑडिट तो आप सारी कंपनीज का करोगे, वैल्यूएशन तो सारी कंपनीज हमेशा नहीं करवाती ना, वो तो डिपेंड करता है उनको फंडिंग रेज करना है या अपने आप को सेल करना है या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आता तो ही आपको वैल्यूएशन कराओगे। तो वैल्यूएशन आइदर कंपनी का होगा, आइदर आपका इक्विटी का वैल्यूएशन होगा। सेम अप्लाइज विद द मर्जर एक्विजिशन। मर्जर एक्विजिशन में क्या होगा, जब कोई कंपनी किसी को बाई आउट करेगी, जब कोई होल्डिंग सब्सिडियरी मर्ज होगी तो उस केस में ही रिक्वायरमेंट जनरेट होगी, बट स्टैट ऑडिट तो आपका कंटिन्यूअस होगा ना। सो दैट्स द रीजन यार, दैट्स द रीजन। आपने जो अपना सिलेक्शन चूज किया ना, दैट इज करेक्ट, बट मैं बोलूंगा कि अगर आपको स्टार्ट में मिल रहा है तो यार बिंदास ज्वाइन कर लो, तो ये क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को मर्जर में जाना है। Okay, sir. And sir, one more doubt. हाँ बोलो ना। Yes, sir. As we have seen on LinkedIn that there are various companies or the big fours also, they are conducting the pre-result sessions like interviews, kind of. They are saying for sending the resumes and all. Sir, for example, if the resume gets shortlisted and God forbid if the person doesn't clear, so after once he clears the exam, will he be having an edge over it or will he be preferred? विल ही और शी, दैट विल बी प्रिफर। सी होता क्या है ना कि जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो। सपोज प्री रिजल्ट हम सीवी मंगाते क्यों है, एज एन एचआर अगर मैं एचआर तो मैं चाहूंगा कि मेरे यहाँ पे यार 500 आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है सारे डोमेन को मिला करके। मैंने प्री रिजल्ट में ही 1500 सीवी मंगा लिए, 1500 सीवी में मैंने क्या करा ना, मैंने 1000 सीवी मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिए। अब 1000 में 500 मेरे को शॉर्टलिस्ट करना बहुत ईजी होगा। हो सकता है अगर 1000 में 500 नहीं हुए, 400 हुए, उसके बाद जो 100 प्रोफाइल बचेगी ना, उसमें क्या होगा कि जो सबसे पहले जिनका सीवी ऑलरेडी शॉर्टलिस्टिंग से रह गया या मान लो कि बेसिक इंटरव्यू क्लियर नहीं, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। प्री रिजल्ट का पर्पस एक ही होता है कि मेरे को कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के सीवीज आ जाएंगे फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग पर्पज। बिकॉज रिजल्ट के बाद भी आज अप्लाई करोगे तो ये नहीं कि आपको तुरंत 2 या 3 दिन बाद आपके इंटरव्यूज कॉल आते हैं। इट टेक्स अराउंड 15 to 20 days फॉर द एंटायर इंटरव्यू प्रोसेस। बट यार मैं अगेन बोलूंगा कि जब आप प्री रिजल्ट जा रहे हो एकदम शिद्दत के साथ जाओ, ठीक है ना। आप ये अज्यूम करो कि आप पास हो रहे हो और आपको इसी पर्टिकुलर बिग फोर में जाना है। बट प्री रिजल्ट का जो पर्पस था वो मैंने आपको बता दिया कि क्या है, एंड डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलेगा। Okay, okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू। हाँ जी दीक्षा। आई थिंक दीक्षा इज नॉट हियर। बाकी समृद्धि, तृप्ति यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन? No, sir. दैट्स गुड। प्रियांक, समृद्धि, रिजल्ट के बाद कितने दिन तक अप्लाई कर सकते हैं? सारी वैकेंसीज विद इन अ मंथ फिल हो जाती हैं, मैक्स टू मैक्स 28 Feb तक सारी वैकेंसीज मैक्सिमम फिल हो जाती हैं। सो आपको कोशिश करनी चाहिए
कि आपको जितनी जल्दी से जल्दी हो आप अप्लाई कर लो। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो। Sir, as we all know that English plays a very significant role in the communication skills. So how to become fluent in that? Actually, that is the See, main concern of mine. okay. But Tripti, I don't think so that your English is bad. I think you are good to go. And if someone told that कि English काफी मैटर करती है और एकदम फ्लुएंट होना चाहिए, तो यार भूल जाओ, ठीक है ना। जो भी आपके दोस्त यार, जो भी आपके सीनियर्स काम कर रहे हो, उनसे आप खाली इतना ही पूछ लेना कि आपकी टीम में whether you people are used to talk in English or not, ठीक है ना। सो मैं एक चीज बताता हूँ, इंग्लिश मैटर करती है बट एट अ फ्लुएंट लेवल मैटर नहीं करती है। You should be able to speak, you should be able to express, that's the thing only, और कुछ नहीं है। Sir, actually, I asked her one friend of mine, and she said that during the interview process, it's very required to speak in English very clearly. Like you have to express your all the opinions in English only. Otherwise, you will not get that edge as compared to the other competitors. ओके सी आई एम सो मैंने वही चीज आपको बोला ना कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, यू शुड बी एबल टू स्पीक। बट अगर आपको लगता, आपको किसी ने ये बोला कि फ्लुएंट आनी चाहिए, तो वो फ्लुएंट आना इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। किसी ने, आप कहीं भी जेडी में आप पढ़ लो, कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि फ्लुएंट इंग्लिश, उसमें सिंपली लिखा होता है इंग्लिश प्रिफरेबल। Okay, sir. Thank you, sir. Anyone else? Should we start applying now or wait till result to send our resume? I think you should start. If you are having a good connects, or if you are having a direct connect with HR, then I think you should apply. So no harm in that. Oh, Priyank, sir, I want to pursue investment banking in future and finance field. Which domain I shall prefer? Priyank, the answer to your question is, अगर आपको investment banking में जाना है, and again my question is कि अगर आप आर्टिकलशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो फोकस कि अगर आपको बिग फोर, अगर आपकी एकेडमिक्स काफी अच्छी है, ठीक है, एंड आपके अकाउंट्स काफी अच्छे हैं, तो आई सजेस्ट कि बिग फोर में ट्राई करो। अगर बिग फोर में नहीं मिलता है तो किसी बुटीक कंसल्टिंग फर्म को ट्राई करो, वहां पे आपको अगर आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो काफी बेटर है। अगर मान लो आपको नहीं मिलता है तो आई थिंक बेटर टू गो विद द स्टार्ट ऑडिट। उसके बाद आईबी वगैरह में जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट या मैक्स टू मैक्स सेकंड अटेम्प्ट में पास करा है तो। 3 4 5 अटेम्प्ट में करा है तो भाई भूल जाओ, वो आप अगर कोई स्टार्टअप होगा जो बुटीक कंसल्टिंग स्टार्ट किया होगा उसमें ही मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फाइनेंस फील्ड में अगेन बी स्पेसिफिक कि फाइनेंस फील्ड होता क्या है। आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस में जाना है, आपको मर्जर में जाना है, कि आपको फाइनेंशियल, आपको एफपीएनए प्रोफाइल में जाना है, या आपको फाइनेंस एंड अकाउंट्स में जाना है। इन सारे के लिए आपको स्टार्ट ऑडिट में जाना प्रेफरेबल होगा। प्राइवेट इक्विटी है, हाँ डेफिनेटली, तो आई सजेस्ट कि आप, अगर आर्टिकलशिप में बिफोर में मिलता है तो आप ज्वाइन, तब तो आप स्पेसिफिक टू डोमेन हो जाओ। नहीं मिलता है तो आप स्टार्ट ऑडिट ज्वाइन कर लो, फिर भी नहीं मिलता है तो आप कोई भी बुटीक कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन कर लो जहां पे आपको ये सारे काम से मिलते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ बुटीक कंसल्टिंग फर्म अवेलेबल इनटू द मार्केट वेयर यू कैन परस्यू योर आर्टिकलशिप। एनीवन एल्स? Okay, so I think there will not be much questions now. I know, so hope I'm able to clear all your doubts what you people were having. मेरा आज का जो एजेंडा था वो केवल ये था कि मैं आपको अवेयर कराऊं कि बिग फोर में जाना एक, जो लोग बोलते हैं कि बिग फोर इज अ वेरी हवा टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, और क्या क्या, जैसे अभी तृप्ति ने बोला कि फ्लुएंट इंग्लिश, जबकि रियलिटी यही होती है कि जेडी में हम लोग सही से पढ़ते नहीं। जेडी में लिखा होता है प्रिफरेबल शुड बी इंग्लिश लैंग्वेज, बट इज नॉट अ मैंडेटरी लैंग्वेज और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है ना। तो आई थिंक दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरा जो पर्पस था वो यही था कि दैट यस यू पीपल शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स।
And one more thing which I want to announce here in front of you all people. And before announcement, I'll request from everyone that if you people can post your feedback on the LinkedIn, I think it will definitely personally motivate me as well as CA Gurukul also, that yes, we were able to deliver to the extent possible to all of you. And yes, we were able to clear all your doubts. And in terms of the announcement, that yes, CA Gurukul has recently completed first batch of articleship boot camp, which were having 7-day session where we called a lot of people from the Big Four, from the top 10. We conducted a session on the group discussion. We conducted session on the LinkedIn. We conducted session on the resume writing and resume preparation along with the expert guidance, where you will get a lot of benefits. You can say that connect with a lot of people, connect with HR, connect with a lot of other connections as well, as which will help you in networking as well as referring your CVs into the Big Four, Big Six or top 10. And to continue with that particular session, we are again coming up with one second batch, or you can say that second session of articleship boot camp, session 2, immediately after CA intermediate result. If result will announce on 5th, our session will start on 6th. If result will announce on 10th, our session will start from 11th. And the session is of 3 hours each session. So entire, if I say that 21 hours, the session will be a formal of 21 to 22 hours. And apart from this, you will be having a lot of other fun sessions where the purpose is to connect with the people, how to build a good connections, how to build a good communication skills and confidence. This is one thing. Articleship Bootcamp 2. And the announcement has been already announcement probably by tomorrow we will made on the LinkedIn, and the information will be shared about the fees and all those things on the WhatsApp chat as well as on the LinkedIn. So I'll request, if you people want to join, if you people really want to gain some knowledge, and I can say that yes, covering all the things in the day one session, or you can say that 1 or 1.5 hour session is not you can say that suffice the purpose, or 1 घंटा time sufficient hota bhi nahi hai. So that's the reason we have, so we are announcing here the articleship bootcamp session 2. And apart from this, CA Gurukul is also launching the Achieving Career Excellence program session 2 for CA final or CA freshers whose result is going to be announced between 5th or 10th. And again, that session is of 10-day sessions where we cover a lot of things. And you can go and check on the LinkedIn as well. And third thing, which is very important, which is very new for the CA Gurukul, where we want your feedback, your support as well, that yes, CA Gurukul is going to launch a fast track session on CA inter audit as well as CA final audit, where we are going to cover CA inter audit within max to max 40 hours, a very concise, very exam oriented, and CA final audit session into max to max 50 hours. So these are the things, these are the announcements which I wanted to make, and hope everybody like this entire discussion, like the sessions. And इसको मैं सेशन बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ये एक मेरे लिए एक डिस्कशन था, मेरा एक अवेयरनेस अवेयरनेस फैलाने का एक मेरा मोड था. And again, thank you so much for taking out your time of, I think it's around 2 hours. Yes. मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट होकर के, एंड आई थिंक आप लोगों को भी काफी अच्छा लगा होगा. And yes, if you like the session, please comment, please post your feedback on the LinkedIn, which will definitely motivation. And ठीक है, सेशन आपको आर्टिकलशिप बूट कैंप में रजिस्टर करना है या नहीं करना है, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, एंड डेफिनेटली इट इज अप टू यू. मेरा काम था आपको बताना. एंड फॉरगेट अबाउट दैट, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, डेफिनेटली वी आर स्टिल here to help you, to support you, to be part of your journey. So this is the motive. Okay, thank you so much. Thank you everyone. Thank you Ishika.
And thank you all other people. Thanks Priyank, thanks Samruddhi, thank Tripti, thank Hemant. And thank you everyone. So goodbye to everyone. Let's be connected.